की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है आदित्य ठाकुर ने और वीडियो का टाइटल है इज दिस इंडियन और पाकिस्तानी। तो पहले हम देखेंगे वीडियो नहीं या पहले मैं मैसेज पढ़ दूं? पहले मैसेज पढ़। मैं मैसेज पढ़ना चाहती हूँ। हमें एक ईमेल रिसीव हुई है और उसमें जिन्होंने हमें ईमेल किया है जिसने हमें ईमेल किया उन्होंने बोला है कि ये मैसेज देते हुए आपने मेरा नाम मेंशन नहीं करना, तो मैं उनका मैसेज पढ़ देती हूँ। उन्होंने बोला है बेसिकली ये मैसेज उनकी अम्मी के लिए है। तो उन्होंने बोला है, ओए क्यूटी पाई, लिसन आई लव यू and also thank you for giving me a family, love and everything. अम्मी I really love you to the square of infinity. और दीदी सुन, she loves me more than she loves you. और बेसिकली वो बोल रहे थे कि वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है और उनकी अम्मी को लगता है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है और उनसे इतना प्यार नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने ये मैसेज हमारे थ्रू अपनी अम्मी को कन्वे किया है। एंड आई होप कि अब उनकी अम्मी को पता चल जाएगा कि वो अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि मोस्टली लड़के ऐसे ही होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लड़कियां अपनी फीलिंग्स ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एनीवे अभी हम देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। Did you know this red drink in my hand came from Pakistan? This is Ruh Afza, India's favorite soft drink. And not just India. This drink is an important part of Pakistan and Bangladesh too. But what if I told you that this bottle came all the way from Pakistan? This is Ruh Afza from Pakistan, exported first to Dubai and then imported to India. Most of us must have had this in our childhood. All of us must have at least one memory of having Ruh Afza in our lives. And with a history that's more than 100 years old, we can safely call Ruh Afza as the Coca-Cola of India. For Americans, Coca-Cola is not just a drink, it's a part of their culture. Similarly, for us Indians, Ruh Afza is a part of our culture. Why? The answer will amaze you because this story is about our history. This drink was born before India's independence in the year 1907. This drink is 113 years old. This is India 40 years before independence. Stroke, diarrhea and dehydration were major killers in Indian summers. And during all of this, Hakim Abdul Majid wanted to develop a medicine that people can have every day without fail. A drink that boosts your immunity. He dived deep into Unani medicine and developed the first formula that took the nation by storm. This drink was developed by a Hakim in a Dawakhana using a Unani formula. But this did not have a communal angle. This wasn't a Muslim drink. This was a drink for everyone. Extracts from rose, kevda, spinach, carrot, wine-soaked raisins among others all combined to form this medicinal heat buster. Ruh Afza was an instant hit. Any home that could afford Ruh Afza had one bottle of it. But the story of Ruh Afza gets really interesting in the year 1947 when India was partitioned and Pakistan was formed. The partition started the largest forced migration in human history. 14 million people started taking whatever they could and crossing over to the other side. Things were bad. But a border could not stop a great idea. The elder son of Abdul Majid decided to stay back in India and the younger one went to Pakistan and Karachi to open a new factory of Ruh Afza over there. इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था, फैमिलीज का भी बंटवारा था. But we are so lucky that ideas like Ruh Afza didn't leave India forever. But India was lucky. This Indian brand became an international one. Today, this ruby-colored syrup has more than 1,000 recipes. This controls more than 50% of India's syrup market. Ruh Afza ice cream, Ruh Afza faluda, Ruh Afza milkshake, laddus, cookies, souffle and even sweet pulao. Did you know in the year 2012, more than 20 million bottles of this drink were sold in India alone? People love Ruh Afza. So much so that right now, in 2020, when the lockdown is in place, Ruh Afza has been labeled as an essential item and you can order it online. But you'll be lucky if you get a bottle because this gets finished like that. For all of us, Indians, Pakistanis, Bangladeshis, this drink's importance goes to a next level during Ramzan. Ramzan is a time when Muslims all over the world fast for the entire day. That means no food and not even water. And they break their fast after the sunset. This syrup in cold water is just the thing you need after a long day of fast. During Ramzan in 2019, India was running out of Ruh Afza. At that time, people from Pakistan helped ship this history-infused drink to India. We see stories about rivalry between India and Pakistan all the time.
but this story is about friendship. This story is not just about a drink, but it's about the common culture that each country in this subcontinent shares with each other. You see, this particular bottle is from Pakistan, लेकिन इसके अंदर जो भरा हुआ है, the recipe is from India. So going by that logic, I will call this drink as an Indian drink. You see, India is not a border that the British drew for us. It's much more. A nation is not just the border. It's the feeling that you get when you go abroad and when you see a Desi person and you say, "अरे ये तो अपना ही बंदा है." When an Indian and a Pakistani meets outside their own country, these borders seem to vanish. I feel sad, I feel angry when there is a conflict between India and Pakistan because हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे और इस चीज का फायदा दूसरे देश उठा रहे। हम सब लोगों को इस बॉटल को नहीं, इस बॉटल के अंदर छुपी हिस्ट्री को देखने की जरूरत है। मे बी ऑल ऑफ अस नीड टू रियलाइज दैट देयर आर सम ग्रेट थिंग्स दैट वी आल्सो शेयर विद ईच अदर। मे बी ऑल ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड ओवर अ ड्रिंक दैट वी शेयर एनीवे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई लव इंडिया। अच्छी रूह अफ़ज़ा की तरीक जो है वो वाकई बहुत पुरानी है। अगर हम अपने घर में भी बात करें ना, रूह अफ़ज़ा जामे शीरीन तो बहुत पुरानी, में लगता है हमारी नस्ल जल्दी तो आ रही है। मौलम इस जामे शीरीन, नॉट शीरीन, जो भी है मेरे लिए तो जामे शीरीन ही है। मीठी है, शीरीन ही मुझे है। वाकई में बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने एक डिटेल में बताया, हिस्ट्री बताई कि ये एक यूनानी फार्मूला था और एक हकीम थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और जिस तरह वहाँ मतलब उस टाइम पर जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी, बीमारियां फैल रही थी, उसके नतीजे में ये हम लोगों को ड्रिंक मिली। तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि एक तो वीडियो बहुत पॉजिटिव थी ऑनेस्टली। जो वीडियो में दोनों लोग थे मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट ये है कि वो दोनों बहुत पॉजिटिव थे और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि थ्रू आउट द वीडियो मेरे चेहरे पर स्माइल थी। इस तरह के लोग बहुत कम है और इस तरह के लोगों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। वैसे अगर बात की ना उनकी जो बात थी कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते से बाहर मिले, तो वाकई वहाँ पे ही चलता है कि यार ये अपना ही बंदा है। वहाँ पे यही चलता है कि यार सारे इकट्ठे रहते हैं। वहाँ पे ये पाकिस्तान इंडिया वाला जो होता है ना, हर दूसरे तीसरे महीने जो काम हुआ होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और अगर रूह अफ़ज़ा की बात करें तो हमारे घर हर रोज अफ्तारी में जरूर होता है। उसके अलावा भी अगर बात करें तो पूरे साल हमारे घर में उसकी बोतल जरूर आती है, में 2 बॉटल्स जरूर आती हैं, लाजमी आती हैं। वो जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देते, हम खुद लेते हैं लेकिन ये कंपल्सरी कहना था, वो कंपल्सरी होती है। बाकी रोजा मुझे लग रहा है कंपल्सरी होती है कि लाजमी आनी होती हैं। अगर रोजा की यहाँ भी बात करें तो फ्रूट चाट में भी लोग डाल के खाते हैं, फिर उसके बाद दूध में भी, फिर उसके बाद गोले में बर्फ का गोले में तो उसके इतने ज्यादा फ्लेवर होता है रूह अफ़ज़ा के, सब्ज रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, 3-4। तो यहाँ पे भी रूह अफ़ज़ा काफी ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर चावलों की बात करें तो चावलों में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि रूह अफ़ज़ा एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जो जैसे हम जर्दा बोलते हैं ना, मीठा पुलाव बोल दिया, मुझे लगता है वो जर्दे को बोल रहे, तो जर्दे में मे भी लोग वैसे अभी मुझे कहेंगे कि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने ना गोलगप्पे में भी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल होते देखा है। अच्छा, हाँ, मैंने वाकई में नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि गोलगप्पे में रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि लाइक जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि हम इंडियन और पाकिस्तानी वाकई में कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाए और हम लोगों में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि इंडिया ने हमें बात की क्यों की, पाकिस्तानी ने हमें बात की क्यों की, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते इन चीजों से। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वक्त की जरूरत ये है कि हम इन चीजों से बाहर निकलें और ये जो इतने टाइम से टैंगल्स हम लोग देख रहे हैं ना, इनको अब रिजॉल्व करना चाहिए। हम लोगों को एटलीस्ट यूथ को इसके बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि जो भी है वाकई में 47 में जिस तरीके से उन्होंने बोला कि सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, फैमिलीज का बंटवारा हुआ। और ये हम लोग को वीडियो में देखी कि एक साइड पर एक भाई चला गया और एक साइड पर एक भाई रह गया। तो उस टाइम के लोगों को जितनी दुख तकलीफ हुई होगी ना, मेरा ख्याल में हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। उसके पार्टीशन के बाद अगर बात करें, पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान आना जाना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना अब आके हो गया है। और अब लोग ये बात करते हैं कि ये अभी भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब आके इतनी ज्यादा मुश्किल
मुश्किलात वीज़ा हासिल करने में है कि लोग जो है आसानी से आ जा नहीं सकते, लेकिन अगर उस वक्त की बात करें ना 1947 की बात की तो काफ़ी अरसा तक हम अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते रहते हैं कि सुबह वो इधर होते थे, शाम को उधर जाते थे और चीज़ें लेके वापस भी आ जाते थे। और बिल्कुल ऐसी कहानियां भी सुनी है कि जिसमें हम लोगों ने कि लाइक कोई सिख फैमिली होती थी जो उनके नेबर में होते थे, शादियां उनकी अटेंड करनी, खाना पीना इकट्ठा होता था, मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हम लोगों को ये वाली स्टोरीज बताया करते थे, तो इतना अच्छा लगता था सुनकर। और इवन कि मेरी बड़ी बहन जो है वो सबसे मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि पुराने टाइम की स्टोरी सुनना, तो वो कभी अभी भी बोलती हैं कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैंने पुराने टाइम में वापस चले जाऊं, लोगों में इतना प्यार होता था, वो इकट्ठे रहते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें सुनकर। और अगर मैं बात करूं इस शरबत की, तो इस शरबत की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि एटलीस्ट चलो इसने जोड़ के रखा है, इसने प्यार जो है उसको मेंटेन रखा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम लोग क्यों एक दूसरे को बुरा कहते हैं, हम क्यों नहीं एक दूसरे की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते, और क्यों एक पाकिस्तानी एक इंडियन की तारीफ नहीं कर सकता, और क्यों एक इंडियन पाकिस्तानी की तारीफ नहीं कर सकता, ये सोचने वाली बातें। इवन कि हमारे कॉमेंट सेक्शन में हम लोगों को ये चीज सुनने को मिलती है, जल तो रहे होंगे अंदर से तो आपको बुरा लग रहा होगा, और मुझे इतनी हंसी आती है सच में, मतलब हम क्यों चलेंगे भाई, हमें क्यों बुरा लगेगा? सीरियसली हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें टाइम इतना बदल गया ना कि सोच बदलनी चाहिए आपको, और आपको एक दूसरे की चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरीके से गोरे अगर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में अभी तक भी मतलब अभी उन्होंने रखी हुई है ना, तो मुझे लगता है अब हम लोगों को उनको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि रूह अफ़ज़ा के अलावा ना एक और शरबत मिलता है, संदल का शरबत वो भी रूह अफ़ज़ा वालों का ही होता है, यानी कि इन्हीं की कंपनीज में से जो रूह अफ़ज़ा, जामी शीर सारे जो है वो उससे आउट करते हैं, इलायची का भी करते हैं, बहुत मजे के होते हैं इनके शरबत, पीने चाहिए। आपको वाकई पी के ना अंदर से ठंडक महसूस होती है। ये तो वैसे पीती है ना शाम को, क्योंकि हमारे घर थोड़ा मीठा बनाया जाता है इससे ज्यादा, तो ये आधा जो है रूह अफ़ज़ा और आधा गिलास पानी इसमें डालती है, हाँ, तो फिर ये पीती हैं। तो वैसे ओवरऑल जो है रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हर टाइम बस वो ही पीता रहूं। अच्छा, वैसे ना रूह अफ़ज़ा के साथ पकौड़ों का कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का है इफ्तार में। लेकिन पता क्या है, बहुत मीठा होता है, चीनी बहुत होती है, तो फैट्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए जो है ना हाथ होला रखना चाहिए। नहीं, वैसे मौसम अभी हाथ होला ही रखता है, मैं इसको देखती हूँ सिर्फ 2-3, पहले ये एक पकौड़ा खाएगा, फिर उसके बाद ये दूसरा खाएगा, फिर तीसरा खाएगा, बस फिर उसके बाद इसने रूह अफ़ज़ा पीना है। तो मतलब मौसम कंट्रोल कर रहा है खाने, इस तरह नहीं कि एकदम से बस बहुत खाना, वो वाला सिचुएशन अभी मौसम का नहीं है। बट अगेन मैं बोलूंगी थैंक यू रूह अफ़ज़ा के आपने हम सबको जोड़ के रखा हुआ और हमें प्यार कर रखा है, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं ऑनेस्टली जिसमें मुझे ऐसे लगता है कि ये तीनों कंट्रीज उनसे ना वो एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ऐसी कोशिशें करते रहे और खुश रहे। और अगर जैसे मौसम ने बोला कि बाहर की कंट्री में, और जैसे वीडियो में भी बोला कि कोई देसी कोई अपना मिलता तो हम कहते हैं ये हमारा अपना है, तो यही सोच हमारी यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारी वीडियोस करें, हमारे चैनल पर वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।